Good morning, students. Today we are going to start a new chapter in our GK book. Okay, students, in my previous video we have studied lesson number 1 in book and copy. I hope you all have done your work in your book and copy, students. So get ready with your book and first of all open the lesson number 2. Today we will study 3 lessons. Lesson 2, 3 and 4. Okay, students. Today we study lesson 2, 3 and 4. Lesson 2 is India. In this lesson we will study about various parts of our India and some states which are very famous. Okay. In lesson 3 we will study about state and capital. Students, as you know that in India there are 29 states and 7 union territories. Okay. Some states and capital we will study in this chapter. And in lesson number 4, the lesson of the name is Know Your Subject. In this lesson, we will study about some subjects like geography, science, history, maths, physical educations. Okay. In lesson number 4, there are some clues given. On the basis of clues, we have to identify that which subject that is. Okay, students. So get ready with your book, pencil, eraser and sharpener. And first of all, students, mention the date on the top of the lesson. Before beginning, we have to mention the date. Today's date we have to mention on the top. Today is 9th June 2020. 9th, 6th. 6th month is the June. And year is 2020. You have to mention in your book. Okay, students. So get ready. Let's start, students, a new chapter in our GK book. So open your book, lesson number 2. This is only just for knowledge. You don't have to write in your book or copy in this chapter. Okay. So let's start. In this chapter we will study about different places. इस chapter में हम अलग अलग जगहों के बारे में पढ़ेंगे. Okay, अपने country के ही. Like our country name is India. Okay, students, in this chapter we will study about India. India के बारे में हम इस chapter में पढ़ेंगे. India has a very diverse landscape, probably the most diverse country in the world. हमारा जो country है India, students, हमारे देश में बहुत से अलग अलग अनेक जगह ऐसे हैं जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे. Like we have some of the coldest places in Kashmir. हमारे पास कुछ ऐसे places हैं, coldest places, ठंडे जगह जो कश्मीर में है. A place that has highest rainfall in the world, महेश्वरम. एक ऐसा place है हमारे country में जहाँ सबसे ज़्यादा highest rainfall होता है, वो place है महेश्वरम. And also one of the driest place on the earth. और एक सबसे ड्राइएस्ट प्लेस है अर्थ पे, हमारे पृथ्वी पर, हमारे अर्थ पर एक ड्राइएस्ट प्लेस है द थार डेजर्ट. एडेड टू दैट मोर देन हाफ ऑफ इंडियन कंट्री इज़ होम टू ब्यूटीफुल बीचेस. और हमारे इंडिया में मोस्टली हाफ जो हमारे कंट्री का बाउंड्री है ये समुद्र तटों से घिरा हुआ है और वहाँ पे ब्यूटीफुल बीचेस हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर. And don't forget northern Indian host Himalayan ranges, the snow-capped mountains. और ये बिल्कुल मत भूलिएगा स्टूडेंट्स कि हमारे इंडिया में जो है हिमालय पर्वत है और जो कि बर्फ़ से पूरा ढका हुआ है. बहुत ही खूबसूरत है हमारा जो हिमालय पर्वत है. Then next, मुन्नार, केरला. केरला में एक जगह है मुन्नार. This little tea town is best known apart from its tea blends for its rolling green hills and scenic beauty. ये जो केरला में मुन्नार प्लेस है ये सबसे ज़्यादा फेमस है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो टी टाउन है एक, जहाँ पे चाय पत्ती बहुत ज़्यादा होती है. आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में दिया भी है. इस तरह के कुछ आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा सीन कि काफ़ी सुंदर दिख रहा है. ऐसे ही आपको मिलेंगे, ये सारे टी प्लांट्स लगे होते हैं इन पे और रोलिंग डाउन नीचे एकदम घूमते हुए आपको दिखेगा ये रोलिंग करते हुए. नाउ जयपुर.
ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज द पिंक सिटी। जयपुर जो है इसे हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। जयपुर का एक और नेम है, क्या है वो? पिंक सिटी। इज़ द कैपिटल ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ राजस्थान। जो हमारा इंडिया का एक स्टेट है राजस्थान, इसका कैपिटल है जयपुर। इट इज़ अ वेरी फेमस टूरिस्ट एंड एजुकेशन डेस्टिनेशन। ये एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस भी है। यहाँ पे बहुत से बाहर से लोग आते हैं इस जगह को देखने के लिए, और एजुकेशन का एक हब है। यहाँ पे एजुकेशन का भी एक हब है। वेरियस फोर्ट्स एंड मोनूमेंट्स ऑफ द सिटी रिफ्लेक्ट्स इट्स ग्लोरियस पार्ट्स। यहाँ पे बहुत से किले हैं, स्मारक हैं जो कि इसके पास्ट के बारे में हमें बताते हैं। टूरिज्म इज़ अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ जयपुर इकोनॉमी। जयपुर की जो अर्थव्यवस्था में है, जो अर्थव्यवस्था में जो सबसे मेन है, यहाँ का टूरिज्म जो सिग्निफिकेंट पार्ट है, टूरिस्ट प्लेस जो है, ये बहुत ही अहम है। सम ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट होटल्स आर लोकेटेड हियर। यहाँ के कुछ वर्ल्ड के, स्टूडेंट्स नोटिस कीजिएगा, वर्ल्ड्स के, पूरे दुनिया के बेस्ट होटल्स यहाँ पे कुछ स्थित हैं, लोकेटेड है। हमारे कंट्री के ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के बेस्ट होटल्स यहाँ पे स्थित हैं। कहाँ पे? जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में। ओके, देन नेक्स्ट जैसलमेर। जैसलमेर ये भी राजस्थान में है। द गोल्डन सिटी हैज़ लॉन्ग बीन अ टूरिस्ट हॉट स्पॉट थैंक्स टू इट्स रॉयल हिस्ट्री। जैसलमेर जो है ये राजस्थान में है। इसे हम गोल्डन सिटी के भी नाम से जानते हैं, और ये भी एक टूरिस्ट प्लेस है। टूरिस्ट प्लेस है, ये काफ़ी गर्म जगह है। दिस डेजर्ट नोन बूस्ट ऑफ जैसलमेर फोर्ट हाउसिंग द राजमहल, अ नंबर ऑफ हवेलीज। द मोस्ट इम्प्रेसिव वंस आर अमर सागर, पद्मों की हवेली एंड नाथमलजी की हवेली। यहाँ पे आप जैसलमेर में स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ ऑल ज़्यादा से ज़्यादा हवेलीज़ देखेंगे। बहुत सी हवेलीज़ हैं, यहाँ पे कुछ के नेम भी दिए गए हैं, जैसे राजमहल, अमर सागर, पद्मों की हवेली एंड नाथमलजी की हवेली। एंड ओरनेट जैन टेम्पल्स आपको यहाँ मिलेंगे। टूरिस्ट कैन एक्सप्लोर द थार डेजर्ट प्रीस्ट अटॉप कैमल्स। यहाँ पे आपको अगर कहीं पे एक जगह से मूव करना है दूसरे जगह, लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना है, तो यहाँ पे लोग किसका यूज़ करते हैं? कैमल्स का। विजिट द डेजर्ट नेशनल पार्क फॉर अ गैंडर एट द फुना और द अकल वुड फॉसिल पार्क। यहाँ पे आप पार्क भी देखने को मिलेगा, एक फॉसिल पार्क है, वो भी बहुत फेमस है। देयर इज़ प्लेंटी ऑफ शॉपिंग टू बी डन फॉर ट्रेडिशनल राजस्थान आर्ट क्लोथ्स एंड ज्वेलरी। यहाँ पे आपको कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें मिलेंगी शॉपिंग करने के लिए। कुछ ऐसे यूनिक क्लोथ्स मिलेंगे, इस टाइप के ज्वेलरीज़ मिलती हैं जो कि हाथ में पहनते हैं लोग। ऐसी कुछ ज्वेलरीज़ वहाँ के फेमस ज्वेलरीज़ हैं जो आपको राजस्थान के अलावा और कहीं नहीं मिलेंगी। सो शॉपिंग्स के लिए यहाँ पे कुछ अलग अलग ट्रेडिशनल चीज़ें मिलती हैं। नाउ केरला सिचुएटेड ऑन द लश एंड द ट्रॉपिकल मालाबार कोस्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इंडिया। केरला जो है ये भी एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। केरला एक अपने आप में ही बहुत ही सुंदर जगह है स्टूडेंट्स। Named as one of the 10 paradise of the world and 50 places of a lifetime by the National Geographic Traveler magazine, the state is especially known for its ecotourism, intuitive and beautiful backwaters. यहाँ पे आप बहुत ही अच्छे अच्छे बैकवाटर्स मिलेंगे आपको, झरने देखने को भी मिलेंगे आपको, और यहाँ पे एक फेमस बोट रेस होता है केरला में, वो आपको देखने को मिलेंगे। आपको देखने को मिलेंगे बहुत से अच्छे चीज़ यहाँ केरला में। वन ऑफ इंडियाज़ प्रीटिएस्ट हिल स्टेशन मनाली के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जो बहुत ही प्रीटिएस्ट हिल है, बहुत ही सुंदर। हैज़ अ लॉन्ग बीन अ टूरिस्ट पैराडाइज, और ये भी यहाँ पे भी बहुत से टूरिस्ट आते हैं। दिस लिटिल टाउन nestled in the mighty Himalayas offers plenty of entertainment for adventure seekers. यहाँ पे लोग बहुत सारे एडवेंचर्स करते हैं, लाइक आप देख सकते हैं इस तरह के स्काई डाइविंग हो गया, आपका बोट रेसिंग हो गया, और भी कई तरह के। द बीच रिवर हैज़ वाइट वाटर राफ्टिंग एंड देयर सिकिंग ट्रेकिंग
पैराग्लाइडिंग एंड ज़ोर्बिंग। यहाँ पे बताया भी है स्टूडेंट्स, जैसे कि आप किस टाइप के एडवेंचर्स यहाँ पे देखेंगे। राफ्टिंग करते हैं लोग, सिकिंग करते हैं लोग, ट्रैकिंग करते हैं, पैराग्लाइडिंग करते हैं, ज़ोर्बिंग करते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें मनाली में फेमस है टूरिस्ट लोगों के लिए, अदर भी जो लोग वहाँ पे घूमने के पर्पज़ से जाते हैं उनके लिए। ओके स्टूडेंट, सो दिस चैप्टर इज़ जस्ट फॉर योर नॉलेज। नाउ मूव टू योर नेक्स्ट चैप्टर, लेसन 3 चैलेंजर्स एक्टिविटी, स्टेट्स एंड कैपिटल्स। इस चैप्टर में हम स्टेट्स और कैपिटल्स के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। लाइक कि आप जानते होंगे, जैसे कि हमारे इंडिया में टोटल 29 स्टेट्स हैं एंड 7 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। हमारे इंडिया में टोटल 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। सो लाइए स्टार्ट करते हैं। राइट डाउन द नेम ऑफ द कंट्री, इट्स स्टेट कैपिटल्स, ऑल्सो कलर द नेशनल फ्लैग। यहाँ पे आपको अपने कंट्री का नेम लिखना है, देन यू हैव टू कलर द नेशनल फ्लैग एंड आफ्टर देन यू हैव टू राइट द कैपिटल ऑफ द गिवन स्टेट्स। ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज़ योर कंट्री नेम? योर कंट्री नेम इज़ इंडिया। व्हाट इज़ योर कंट्री नेम? योर कंट्री नेम इज़ इंडिया, एंड आई थिंक you all know that which color we have to use to color this national flag. On the top you have to use orange, then green, then white, then navy blue. Okay, now come on, exercise. First is Andhra Pradesh. The capital of the Andhra Pradesh is Hyderabad. Second is Arunachal Pradesh. The capital of Arunachal Pradesh is Itanagar. Third is Uttar Pradesh. The capital of Uttar Pradesh is Lucknow. Fourth is Karnataka. The capital of Karnataka is Bengaluru. Okay students, the capital of Karnataka is Bengaluru. Then fifth is Haryana. The capital of Haryana is Chandigarh. Sixth is Himachal Pradesh, and the capital of Himachal Pradesh is Shimla. Capital of Himachal Pradesh is Shimla. Seventh is Gujarat. The capital of Himachal Pradesh is Shimla. Then seventh is Gujarat. The capital of Gujarat is Gandhinagar. The capital of Gujarat is Gandhinagar. Then last one is Punjab, and the capital of Punjab is Chandigarh. So students, you have to fill this all the exercise in your book. Okay, after that I will tell you that how could you write in your copy. Don't forget to mention here date and the HW. Okay students, mention here the date and HW. Then one more chapter we will do today, chapter number 4, know your subjects. Chapter number 4, know your subjects. Can you guess which subject we are talking about from the clues given in the following fun trivia quiz? Okay students, यहाँ पे कुछ clues दिए हैं, इनसे हमें क्लियर करना है कि हम किस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, देन फर्स्ट इज रनिंग, जिम्नास्टिक एंड टीम स्पोर्ट्स मेक दिस सब्जेक्ट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रनिंग की, जिम्नास्टिक की और स्पोर्ट्स की भी बात कर रहे हैं हम. ओके स्टूडेंट्स, इससे क्लियर हो रहा है कुछ हम फिज़िकल के बारे में बात कर रहे हैं. सो द सब्जेक्ट इज़ फिज़िकल एजुकेशन. The subject is physical education. In this subject, we will study about running, gymnastic, team sports, and lots of other things. Okay. Then next is famous explorers and settlers will be discussed in the class. In this class, students, very famous explorers, बहुत ही famous खोजकर्ता लोग डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से लोग कहाँ कहाँ बसने वाले हैं या बस रहे हैं, उनके बारे में डिस्कशन होता है. सो दिस सब्जेक्ट इज ज्योग्राफी, भूगोल. द नेक्स्ट इज इन दिस क्लास यू विल लर्न हाउ एंड वाई थिंग्स वर्क द वे दे डू. इन दिस सब्जेक्ट स्टूडेंट्स यू विल लर्न दैट कैसे कोई भी चीज़ क्या रिएक्ट करती है और क्यों रिएक्ट करती है और किस वे में रिएक्ट करती है.
सो द सब्जेक्ट नेम इज़ साइंस। साइंस में हम पढ़ते हैं कि कौन सी चीज़ में क्या मिलाने पे क्या उसका रिएक्शन होता है, कौन सा केमिकल में कौन सी केमिकल मिलाने पे उसका क्या आपको आउटपुट मिलता है। देन फोर्थ इज लर्निंग अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज़ व्हाट दिस सब्जेक्ट इज़ ऑल अबाउट। इस सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स हम अपनी जो प्रीवियस हमारे कंट्री का जो भी प्रीवियस चीज़ें हो चुका है हमारे कंट्री में, हमारे वर्ल्ड में, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो द सब्जेक्ट इज़ हिस्ट्री। हिस्ट्री इतिहास, इतिहास के बारे में हम पढ़ते हैं इस सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स। देन नेक्स्ट इज adding, subtracting, multiplying and division are just some of the things you will learn while studying this subject. इस सब्जेक्ट को आप लर्न करते समय, स्टडी करते समय आप लर्न करते हैं हाउ डू वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड. So student, it is very clear the subject is math. In the math you study about adding, subtracting, multiplying and divide. So write here maths. Okay students, so you have to do this exercise in your book and mention here HW and the date. Whatever the date today you have to mention here. Okay students, so do lesson 3 and 4 in your book, and after that I will tell you that how could you write in your copy.